Well, politics taking center stage even before the release of the movie. Now that the movie has released and it has been receiving a good response from the people there who have been watching the movie, coming out to saying that, ruling out any sort of a propaganda. Even as politics now, as this being witnessed in different states, the West Bengal Sarkar already announcing a ban. There has been a similar sort of a sentiment that is also now being witnessed in the state of Jharkhand. Let's break that story for our viewers right now. What we are getting to know that there has been a Congress MLA who is demanding a ban on the Kerala Story movie. The MLA from Jamtara who has now demanded the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren to impose a ban on the movie Kerala Story. This comes after the West Bengal government announced a ban on the movie. The state Congress leader Dr. Irfan Ansari has also written a letter to the Chief Minister seeking a ban on the movie. In this letter to the Chief Minister, Dr. Ansari has now accused the film of promoting communal hatred specifically aimed at benefiting the BJP in Karnataka elections and therefore demanding a ban on the movie. Tetri is with us right now. Tetri, good morning. Are we looking at multiple of all of these opposition states, especially when the kind of a ban call that has been made right in West Bengal? Is Jharkhand also following suit? Well, such kind of sentiments is rising not only from the state of Jharkhand, but in the past couple of days we have seen that the movie was first banned in the state of Tamil Nadu. Then yesterday an official notification was released by the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, from West Bengal itself, that the movie will not be screened in any of the theatres in West Bengal. And now it is the same kind of sentiments is rising up from the state of Jharkhand, where the MLA Irfan Ansari from Jamtara written a letter to the Chief Minister of Jharkhand, Mr. Hemant Soren, demanding that the movie, the Kerala Story, should not be screened. Now he has cited several reasons. Number one, he is saying that this movie is spreading communal hatred in the society. Number two, he is saying that such kind of movie is released at a time when there is an election in the state of Karnataka. And third, he is saying that BJP is using this movie as a propaganda tool. So that is why in the end he is demanding that this movie, the screening of this movie, particularly the Kerala Story, should be stopped. So remember that Jharkhand is not the only state which is pouring up with such kind of sentiments. Other states are also coming up protesting that this kind of movie should not be screened in the theatres in the particular states. I believe that Irfan Ansari ji is with us on the phone line right now. Dr. Ansari, can you hear me, sir? Yes, ma'am. Tell me. Sir, can you tell us more about this letter that you have written now to the Chief Minister? You have been citing your opposition and objection to the movie Kerala Story, sir. Remember, I wrote a letter to CM because of this movie is not for public. This movie is not for our Jharkhandis. हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए मूवी नहीं है. मूवी हमने देखा है. यही मूवियाँ बनी है देश में जो लोगों को शिक्षित करती है, उसके अंदर कुछ प्रेरणाएं मिलती है. लेकिन ऐसी मूवी जो चुनाव को देखते हुए बनाई जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है. कोई भी सभ्य समाज इस मूवी को बर्दाश्त नहीं करेगा. आज हमारे बच्चे भी हमको फोन करके बोलते हैं कि पिताजी ये कैसी मूवी बना रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, देश हमारा कहाँ जा रहा है. किसी एक वर्ग को टारगेट करके समाज में नीचा दिखा के हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं. ये देश हमारा है, देश के सभी धर्म के लोग हमारे हैं. अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो झारखंड है मैडम, हम लोग काफी बैकवर्ड स्टेट है. वी आर वेरी बैकवर्ड स्टेट इन झारखंड. हमें लगता है कि वी आर वेरी रिच इन माइंस एंड मिनरल, बट वी आर वेरी पुअर. और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो, अगर आप देखिएगा यहाँ का जो, लेकिन अंसारी जी, अगर किसी को आपत्ति है मूवी देखने से तो वो ना देखे. आप अगर जो फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउस है वो सामने आकर कह रहे हैं कि ये किसी वर्ग या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ना किसी रिलीजन या धर्म के खिलाफ है, ये सीधा टेररिज्म के खिलाफ मूवी और ये फैक्ट्स पे बेस्ड है, केस स्टडीज के ऊपर बेस्ड है और ये दर्शाता है जो आखिरकार बहुत सारी महिलाओं के साथ केरला में हुआ क्या. तो अगर उसे किसी को आपत्ति है मूवी देखने से तो वो ना जाए देखने के लिए. कोर्ट ने माना है, कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है. कोर्ट ने माना है कि मात्र 3 बच्चियों के साथ इस तरह की घटना घटी है और 32,000 बच्चियों को आप दिखा रहे हो. आप एक तरफ कोर्ट से माफी मांग रहे हो और दूसरी तरफ आप फिल्म रिलीज कर रहे हो. एक तरफ कर्नाटक का चुनाव है. आपको नहीं लगता है कि वहाँ के लोग सर, उसी कोर्ट ने ये भी कहा है कि जहां तक अगर कोई कम्युनल हेट्रेड या जो लॉ एंड ऑर्डर का जो वास्ता दिया जा रहा है उससे मूवी के रिलीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
नहीं देखिए मैडम, 3 राज्यों का चुनाव और सर यहाँ पे अगर ऑटोनमस बॉडी है, अगर फिल्म सर्टिफिकेशन का भी बात करें, उन्होंने कट्स ऑलरेडी बता दिए गए थे मूवी को रिलीज होने से पहले और ए सर्टिफिकेट दिया गया मूवी को, तो आपको अगर ऐसे इंस्टीट्यूट्स पे भरोसा नहीं है क्या सर? नहीं देखिए, भरोसा तो है। मैं कह रहा हूँ कि 3 राज्यों का चुनाव था पूर्व में, उससे पहले इन लोगों ने कश्मीर फाइल लाया था। आप बताइए, कश्मीर मूवी दिखाकर अगर आप चुनाव जीत जाइएगा तो लाइए मूवी, जितना लाना लाइए। सर इसका भी जवाब फिल्म मेकर्स ने दिया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब मूवी बनानी शुरू करी थी 3 साल पहले, उन्हें क्या आइडिया था कि कर्नाटक के चुनाव होने वाले हैं? चुनाव तो हर साल कितने सारे राज्यों में होते हैं सर, अब हर बारी टाइमिंग को क्वेश्चन किया जाएगा। मैडम मैं उस पर जाना नहीं चाहता। इस मूवी से देश की जनता आहत हुई है, हमारी झारखंड की जनता आहत हुई है। आपने देखा होगा कि उसी राज्य हमारा बंगाल ने भी इस मूवी पर बैन लगा दिया। आखिर बैन क्यों लगाया गया, इसके पीछे हमको जाने की आवश्यकता है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा, आदरणीय हेमंत सोरेन जी से, कि यहाँ का वातावरण में देखिए दूषित ना करे। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, सारे बच्चे मूवी देख रहे हैं, और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए आप। तो सर आपको लगता है एक मूवी की वजह से, आपको लगता है कि जो सोशल फैब्रिक है हमारा वो उस पर असर पड़ेगा, कम्युनल हेट्रेड पड़ेगा? देखिए मैडम हम लोग एक मूवी का आपको लगता है इतना असर पड़ेगा सर? देखिए मैडम, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हम लोग मिलकर रहते हैं। हम जहां से चुनाव जीतते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। अब बताइए मैडम, हमारा जो वहां में मुस्लिम नहीं है, मेरे पिताजी 32 साल वहां के एमएलए रहे, मैं 10 साल से वहां चुनाव जीता हूं जामताड़ा से। मुस्लिम की आबादी कम है, हम बहुत वोट लाते हैं। अब बताइए ऐसे मूवी सर एक मूवी पर आप तुष्टीकरण की राजनीति पर क्यों उतर आ रहे हैं सर? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की तो बात हो ही नहीं रही है, एक मूवी की बात हो रही है सर। जिससे पसंद है वो देखने जाए, जिसे नहीं पसंद है वो ना जाए। देखिए मैडम, आप तो इतनी जानकार एंकर हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप मुस्लिम होती तो क्या करती, बताइए आप। बोलिए मैडम, आपका खून खोलता कि नहीं खोलता? सर मैं किसी धर्म के लिए यहाँ पे खड़ी हुई नहीं हूँ, सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मेरी बात नहीं है यहाँ पर सर। एक मूवी को लेकर आपको लगता है इतनी आपत्ति होती है तो आप लोगों पर छोड़ दीजिए, पब्लिक पर छोड़ दीजिए, जो आपको वोट देते हैं आप उन पे छोड़ दीजिए। उनकी जितनी, अगर आपको लगता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उनकी इतनी है कि वो अगर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या देखना और क्या नहीं देखना चाहिए, आप लोगों पे छोड़ दीजिए कंप्लीटली सर। अंसारी जी मेरे पास वक्त इतना ही है सर, आपका हमने कमेंट लिया लाइव फिलहाल। जी सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। We're trying to get in more reactions on this. However, with the ban that has now been imposed on the screening of the movie in West Bengal, here is a Jharkhand Congress MLA who has been writing a letter to Chief Minister Hemant Soren asking for a similar ban to be imposed in the state of Jharkhand.